and MTech program in Roorkee. Dr. Pujara has over 25 years of rich academic experience. He has had several key leadership roles at Nirmal University and has been associated with Indian institutions like ISRO, PEC during his research career. Dr. Pujara is widely recognized for his contribution in the fields of microwaves, antennas, academic innovation, and quality in higher education. He has guided several PhD scholars, led multiple co-founded research projects, and delivered over 250 invited talks across India and abroad. These accolades include the ISC Best Engineering Teacher Award, ULR Young Scientist Award, IETE Memorial Award, and the prestigious Fulbright Fellowship. We are privileged to have him share his insights with us today. Now, I would like to invite Professor Manik sir to share few words with us. Good afternoon to all. I heartily welcome Dr. Gaurav Pujara sir, Director of School of Engineering, PDBU, Gandhinagar. As you know that as a part of student induction program, we are inviting eminent faculties, first from various universities and from industries. Pujara sir is an expert in electronics and communication engineering, a very difficult subject like antenna design, microwave. So today, in spite of his busy schedule, he does state that I have a meeting with our secretary, madam. So he is in a always busy with different research and academic activity. So, sir, on behalf of VGC, I will welcome you. And now I request sir to start the session. Sure, sure. Good afternoon, friends. This is exactly 1:30, and I'll make sure that by 2:50 you all are free. So you have to be with me for next 80 minutes. Will that be okay? Hello. Good afternoon. Wonderful. Here we go. Friends, at the outset, I thank organizers, especially this college. I still remember 1997 for the first time when I joined this profession of teaching. This was my first college and I delivered my first lecture to the student of instrumentation and control way back in 1997. So I still have those golden memories with me. I thank once again to the principal of the college, the head of the department, and my best friend, Dr. Sanjay, who invited me to talk to you this afternoon. The topic which I have chosen for you is very interesting. Power of positive attitude. Friends, there is no preaching, there is no teaching. इस पूरी लेक्चर में आपको कोई पढ़ाने का, आपको कोई सीख देने का मेरा उद्देश्य नहीं है. I would like to share with you some of the interesting stories, experiences with all of you. Let me start with a very interesting story. Friends, why it is not visible properly? In my presentation, I'll discuss with you importance of attitude in life. What is attitude? What is positive attitude? Symptoms of a person with negative attitude, and a few tips to become a positive person in life. And we'll also discuss through examples and stories what are the outcomes, results of a person being positive in life. Let me start with a story. 5000 की बस्ती का एक छोटा सा गांव है. 5000 की बस्ती का छोटा सा गांव है. गांव में पिछले 3 साल से पानी का एक बूंद नहीं गिरा है. बारिश नहीं हुई है. अकाल पड़ा है, दुकाल पड़ा है. बच्चे, बड़े, बूढ़े,
भेड़ बकरियां सब त्रस्त हैं, दुखी हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं। पिछले 3 साल से एक बूंद पानी नहीं गिरा है। गांव के लोग दुखी हैं। गांव के लोगों ने अपने मुखिया को जाके बताया, सरपंच जी को बताया कि कुछ समाधान दीजिए, हम लोग बहुत दुखी हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, हमारे भेड़ बकरियां मर रहे हैं, कुछ समाधान दीजिए। सरपंच बहुत सयाना था, उसने बोला कि एकदम से तो मेरे पास भी कोई समाधान नहीं है इस समस्या का, ऐसा करते हैं हम पंचायत बुलाते हैं। पंचायत को गांव में परमेश्वर माना जाता है। गांव की पंचायत को बुलाया गया, पंचायत ने सलाह मशवरा किया, उसके बाद इस निर्णय पर आए कि ऐसा करते हैं, अभी तो कुछ सूझ नहीं रहा है, अकाल पड़ा है, दुकाल पड़ा है। कल सुबह 11 बजे हम लोग गांव के चौराहे पे इकट्ठा होंगे, सब लोग मिलके भगवान को प्रार्थना करेंगे, इंद्र को रिझाएंगे, वरुण को रिझाएंगे। हो सकता है भगवान हमारी विनती को मान ले और बारिश आ जाए। पूरे गांव में बता दिया गया, बच्चे से लेके बूढ़े को सबको आना है। कल सुबह 11 बजे सामूहिक प्रार्थना होगी। छोटा सा गांव है, 10:30 पौने 11, धीरे 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 पूरे गांव के लोग चौराहे पे इकट्ठा हो रहे हैं। किस लिए? आज इंद्र को मनाना है, रिझाना है, बात करनी है, अपनी विनती उनके तक पहुंचानी है। 11 बजने में बस अब 5 मिनट रह गए हैं, अब सामूहिक प्रार्थना शुरू होने वाली है। तब एक बच्चा अपने हाथ में छाता लिए हुए, लगभग 10 साल का राजू अपने हाथ में छाता लिए हुए निकल पड़ता है। गांव के लोग उसे देखते हैं, अरे नादान, आवारा, गवार, कुछ अकल है कि नहीं? पूरे गांव में पिछले 3 साल से पानी का एक बूंद नहीं गिरा है और तू हाथ में छाता लेके आया है। स्कूल वूल जाता है कि नहीं? कोई पढ़ाता के है कि नहीं? कोई सिखाता है कि नहीं? क्या करते हो? तुम्हारे माँ बाप कौन है? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तुम्हारे शिक्षक कौन है? इतना भी नहीं पता है। पानी ही नहीं है तो छाता लेके क्यों आए? बच्चे ने जवाब दिया। 10 साल का बच्चा अब गांव वालों को जवाब दे रहा है। गौर फरमाइएगा बच्चों ने क्या जवाब दिया है। बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले, जब हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, पूरा गांव मिलकर प्रार्थना करेगा, मुझे अपनी प्रार्थना पे भरोसा है, जैसे ही हमारी प्रार्थना खत्म होगी धुआंधार बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। और जब मूसलाधार बारिश होगी, मुझे घर वापस तो जाना है, मुझे घर जाके स्कूल तो जाना है, तो मैं तो वापसी की तैयारी करके आया हूं, मुझे अपनी प्रार्थना पे पूरा भरोसा है। इस कहानी को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक, भगवान पे भरोसा, खुदा पे भरोसा, पावर ऑफ प्रेयर भी बोल सकते हैं, पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग अभी इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में आपने दाखिला करवाया है। धीरे धीरे आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस आएगी। कोई बोले कि सर मुझे चैलेंजेस पसंद नहीं है, तो आप इंजीनियरिंग छोड़ दो। इंजीनियर को सैलरी तभी मिलती है, चाहे वो कॉलेज का प्राध्यापक हो या कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल गूगल, अमेज़न कंपनी का इंजीनियर हो। इंजीनियर को सैलरी, टाइटल, पर्क्स तभी मिलते हैं जब वो चैलेंजेस का सामना करते हैं। आज का सबसे बड़ा लेसन आपके लिए, अभी तक 2 लेसन मैं दे चुका हूं। एक, भरोसा, अपनी शक्तियों पे भरोसा, भगवान पे भरोसा। आप जिसे भी मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, कृष्ण, राम, स्वामीनारायण, दुर्गा, आप जिसे भी मानते हो उसके ऊपर आपका भरोसा। दूसरा, अपने आप पर भरोसा। और तीसरा, चैलेंजेस लेने की मेरी पूरी तैयारी। अगर आप चैलेंजेस लेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर के रूप में बाहर आएंगे। तो पहली स्टोरी से हमने 2 चीजें सीखी, प्रार्थना पे भरोसा, अपने आप पे भरोसा और पॉजिटिव एटीट्यूड। मुझे एक और स्टोरी की तरफ आपको लिए चलना है। आपको जरा भी चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं करना है, पूरी स्टोरियां ही है, कोई टीचिंग प्रीचिंग मुझे आपके साथ नहीं करना है, ठीक है? तो दूसरी स्टोरी है, इस जेंटलमैन का नाम है आर्थर। आप जानते हो ये कौन है? कोई गेस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो?
पिक्चर देख के बता सकते हो कि ये कौन होगा? अनफॉर्चुनेटली ही हैज पास्ड अवे। कोई गेस कर सकता है? बहुत ही ब्राइट विद्यार्थी हैं आप सब, है ना? वीजीईसी में एडमिशन मिलना माने एक तरह से स्टैंप मिल जाना कि भाई बहुत ब्राइट होगा तभी तो वीजीईसी में एडमिशन मिलता है। और आप जितने अच्छे छात्र आज तक मेरे एक भी वर्कशॉप में नहीं आए हैं, 350 वर्कशॉप में मैं ऐसा बोलता हूं। बताइए, इन सज्जन के बारे में कुछ बता सकते हैं देख के ही? हाँ, वंडरफुल, वेरी नाइस, यूएसए से है। यस, टी शर्ट पे लिखा हुआ है। और क्या है यार? दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। बहुत अच्छा। और क्या? कम ऑन, वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स, वीआईपी गैलरी। हाँ, बहुत अच्छा। क्या नाम है बेटा आपका? अक्षय। अक्षय के लिए हम लोग एक अच्छे से ताली बजाएंगे। मुझे इस सज्जन की कहानी आप सबके साथ साझा करनी है, शेयर करनी है। देखिए ये कौन है? आर्थर was an American tennis player who won 3 Grand Slam singles title, was the first black player selected in the US Davis Cup team. He is considered the world's #1 tennis player. पूरी दुनिया का उस समय का नंबर 1 टेनिस प्लेयर, जाना माना खिलाड़ी आर्थर। अब वो एक हार्ट सर्जरी उनकी हुई, तब उनको बहुत सारे ब्लड की जरूरत हो गई। उनको ब्लड दिया गया बाहर से। 1983 की बात है, आज से लगभग मान लो 45-50 साल पहले की बात है। उनकी हार्ट सर्जरी के दरमियान उनको बाहर से किसी और का ब्लड दिया गया और अनफॉर्चुनेटली जो ब्लड उनको दिया गया वो ब्लड इंफेक्शन वाला था। उनको एड्स लग गया। एड्स की खतरनाक बीमारी 1983 में, लगभग 50 साल पहले, 40 साल पहले ये बीमारी उनको लग गई। तब तो साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा हुआ था। वो बेड पे लेटे हुए थे हॉस्पिटल में। पूरी दुनिया से उनको खत आते थे। तब तो ईमेल नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था। उनको पूरी दुनिया से लेटर आते थे। उनमें से एक ने पूछा उनको, आर्थर तुम्हें इतनी भयानक बीमारी हुई है, तुम इतने अच्छे प्लेयर हो, अमेरिका के लिए खेलते हो, ग्रैंड स्लैम तुमने खेला है, विंबलडन तुमने खेला है, भगवान की एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। हम भगवान से भिड़ जाएंगे, भगवान से लड़ जाएंगे, ये नाइंसाफी है। पूरी दुनिया में से भगवान ने तुम्हें ही ये खतरनाक बीमारी क्यों दी? अब आप जरा सोचिए, लोग इसको कितना चाहते होंगे, भगवान से भिड़ जाने के लिए तैयार हैं। लोगों ने क्या पूछा? Why did God have to select you for such a bad disease? इस भयानक बीमारी के लिए भगवान ने तुम्हें क्यों सिलेक्ट किया? अब हमारे जैसा कोई होता और ऐसा खत पाता, पत्र पाता, तो हम क्या बोलता? हमारी साथे जाऊ થાય છે, દર વખતે ભગવાન મને જ આ બધું મોકલે છે, મારા જ નસીબ ફૂટેલા છે, કરમ કઠણ છે. But he did not say like this. What he said, wonderful answer which he replied. To this Arthur Ashe replied. अब जरा गौर फरमाइएगा ना, एकदम से यहां पर इंस्टाग्राम बंद, हाँ फेसबुक बंद, यहां पर द वर्ल्ड ओवर। अब आर्थर जवाब कर रहा है। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, क्या बोल रहा है? द वर्ल्ड ओवर 50 million children start playing tennis. सामने वाले ने क्या पूछा है? भगवान ने इस खतरनाक बीमारी के लिए तुम्हें ही क्यों सिलेक्ट किया? अब ये जवाब दे रहा है, स्टेटिस्टिक्स प्रेजेंट कर रहा है, आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है। क्या है? पूरी दुनिया में 50 मिलियन बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं, उनमें से 5 मिलियन थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। उनमें से 5 लाख बच्चे प्रोफेशनल टीचर के पास जाके, कोच के पास जाके थोड़ा बहुत सीखते हैं। 50,000 अब कंपटीशन में आगे आते हैं, सर्किट में आगे आते हैं। उनमें से 5,000 ग्रैंड स्लैम नाम की कंपटीशन है, वहां तक पहुंचते हैं। उन 50 मिलियन में से धीरे धीरे 50 बच्चे 50 रीच विंबलडन, जो कि और कठिन कंपटीशन है। विंबलडन में भी
50 में से धीरे धीरे कम होते होते 4 सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, फाइनल में तो खाली 2 ही पहुंचते हैं, और विंबलडन का कप लेके तो 50 मिलियन बच्चों में से एक ही निकलता है ना। इंडिया में क्रिकेट का भगवान तो एक ही है, सचिन तेंदुलकर। कैप्टन कुल एक ही है, महेंद्र सिंह धोनी। इतने सारे 145 करोड़ में, आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि महेंद्र सिंह धोनी ने इसका ट्रेडमार्क करवा लिया कि अब कैप्टन कुल पूरी दुनिया में मैं ही बोला जाऊंगा और कोई नहीं। अब आप बोलिए सर ये आंकड़ों से क्या है? अब आप देखिए उसने क्या बोला, 2 to the final and when I was holding a cup, जब मुझे विजेता घोषित किया गया, मैं कप लेके खड़ा था, तब तो मैंने भगवान को नहीं पूछा था 50 मिलियन बच्चों में से मुझे ही ये कप के लिए काबिल आपने क्यों समझा? अगर तब नहीं पूछा था तो आज तकलीफ में, दुखद परिस्थिति में मैं भगवान से नहीं पूछ सकता हूं कि वाई मी। हमारा सबका भी यही है। मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव एटीट्यूड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और आपकी परीक्षा, आपके एटीट्यूड की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? जब आप तकलीफ में से पास होते हो, जब आप चैलेंजेस में से पास होते हो। इतनी बड़ी चैलेंज के सामने वो खड़ा है, फिर भी क्या बोलता है? नहीं, भगवान ने जो भी सोचा होगा मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। रामायण में बहुत अच्छी बात बताई गई। तुलसीदास जी ने बताया, जय विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। आई टेल यू व्हाट इज दिस। जय विधि नाथ होई हित मोरा। हे नाथ, हे भगवान। कौन से भगवान? भगवान जीसस भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, रहीम भी हो सकते हैं, अल्लाह भी हो सकते हैं। हे भगवान, जय विधि नाथ होई हित मोरा, मैं हित में जो है बस वो तुम करना। मुझे वीजीसी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन मिला है, बस भगवान की यही मर्जी है, मैं इसमें अच्छा करूंगा। मुझे भी इसी में एडमिशन मिला था, फिर भी मैं आज 5000 बच्चों का, जिनमें कंप्यूटर साइंस के 2000 बच्चे भी हैं, उनका मैं डायरेक्टर हूं। सिर्फ काबिलियत आपकी है। लोग बोलते हैं कि मुझे कंप्यूटर में एडमिशन लेना है, अच्छी ब्रांच है, बहुत अच्छा है, जाइए, बट कंप्यूटर से पहले कॉम्पिटेंट इंजीनियर बनिए। आपको कॉम्पिटेंट बनना है, आपको स्मार्ट बनना है। इंजीनियरिंग चाहे कोई भी हो। माय डॉटर, शी वाज गेटिंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, बट शी सेड डैडी मुझे सिविल करना है। आई सेड फाइन, यू गो फॉर सिविल। आपकी ब्रांच से ज्यादा क्या मायने रखता है? आपका एटीट्यूड। मैं उसकी भी बात आपको साझा करूंगा। फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन के फादर, नाम पता है आपको? हाँ, हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने मधुशाला करके एक बहुत अच्छी किताब लिखी। हरिवंश राय बच्चन ने एक दिन अमिताभ को एक लेसन दिया, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। आपकी तरह यंग अमिताभ बच्चन उन दिनों बाबा को जाके पूछता है कि ए बाबा, पापा, आंसू पोंछो, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। बोले मन का हो, मैंने जो सोचा मुझे मिल गया, बहुत अच्छा, बट ना हो, मेरे मन का ना हो तो किसके मन का हुआ? ऊपर वाले के मन का हुआ, वो तो और अच्छा होगा। अब यही एटीट्यूड लेके आप चलते हो तो आपकी लाइफ में सक्सेस पांच छूने के लिए तैयार है। एक और एग्जांपल मुझे रामायण से आपको देना। आप सबको ज्ञात होगा दशरथ जी के 4 पुत्र, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये बताना पड़ता है आजकल तो, ये कौन है? हम तो हैरी पॉटर को जानते हैं, ये राम वाम कौन है? तो भगवान राम को उनकी माता कैकेयी के द्वारा एक पिताजी को वचन मिला था, और उस वचन के तहत भगवान राम को अपने भाई लक्ष्मण और अपनी वाइफ के साथ वनवास हुआ। कितना वनवास हुआ? 14 साल। अब पूरी कहानी में मैं नहीं जा रहा हूं, मेरे कुछ उसके ऊपर भी लेक्चर्स है, लाइफ लेसन्स फ्रॉम हनुमान, बहुत ही फेमस लेक्चर है, कभी सिखाएंगे वो भी आपको। अब भगवान 14 साल के बाद वापिस आ रहे। अब आप सोचिए, जिनकी वजह से उनको 14 इयर्स के लिए घर से बाहर जाना था, अब वो वापिस आ रहे अयोध्या। अपने पुष्पक विमान में भगवान नीचे उतरे। उनको पूछा गया कि आप
14 साल के बाद आए हैं। पिज्जा और चाय का ऑर्डर तो कर दिया है हमने, पर तब तक आपको किसको मिलना है? तो बोले पहले तो गुरु जी को मिलूंगा, है ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, है ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश, ये आज के लिए नहीं, 4 साल तक ये जितने गुरु आपके आगे बैठे हैं ना, उनको हमेशा आप उसी नजर से देखिएगा, गुरु ब्रह्म है ना। तो भगवान राम ने पहले किसको मिला? गुरु को मिला। अब किसको मिलना है? पिताजी। तो पिताजी तो रहे नहीं, दशरथ जी का तो स्वर्गवास हो चुका है। तो बोले ऐसा करो, सबसे बड़ी मां और आपकी बायोलॉजिकल मदर कौन है? कौशल्या मां, आप उनको मिलो। बोले नहीं, उनको बाद में मिलेंगे। बोले नहीं, मिलना पड़ेगा, प्रोटोकॉल है, वो अयोध्या की सबसे बड़ी महारानी है। तो बोले नहीं, प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, बाद में मिलेंगे। तो बोले और किसको मिलना है? सेकेंड किसको मिलना है? तो बोले सुमित्रा जी को मिल लो, वो भी मां है, और उनका बेटा लक्ष्मण आपके साथ 14 साल रहा, अपनी वाइफ को छोड़ के 3 सासों के पास, 3 मदर इन लॉस, और उर्मिला जी उनके साथ रही शादी के इमीडिएटली बाद। तो बोले उनको मिल लो। तो बोले नहीं, उनको बाद में। तो बोले अब किसको मिलना है? बोले मुझे मां कैकेयी को मिलना है। तो कुछ लोग बोले भगवान आप क्या, जिनकी वजह से आपको 14 साल वनवास लगे, आप उनको मिलना चाहते हो सबसे पहले गुरु जी के बाद? बोले हाँ। कैकेयी जी के पास गए और भगवान ने बोला मां मैं तेरे पास आया हूं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। अब तब तक कैकेयी को भी सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, अब वो समझ गई है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो बोले बेटा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू मेरे पास आएगा, तू क्यों आया मेरे पास? और मैंने सुना है कि गुरु जी के बाद सीधा तू अपनी मां को छोड़ के, कौशल्या मां को छोड़ के, सुमित्रा मैया को छोड़ के तू मेरे पास आया है। बोले हाँ, तेरी वजह से मेरा बहुत फायदा हो गया। बोले गुरु जी के पास बहुत कुछ मैंने सीखा था, सब कुछ थियोरेटिकल सीखा था, प्रैक्टिकल तो युद्ध में जाके किए, और वो प्रैक्टिकल करने का मौका तूने दिया। अगर तू वन में नहीं भेजती तो मैं प्रैक्टिकल नहीं सीख पाता। मुझे कितने अच्छे अच्छे लोगों से, कितने अच्छे फ्रेंड्स मुझे मिले। मुझे हनुमान मिला, मुझे सुग्रीव जी मिले, मुझे विभीषण जैसा दोस्त मिला। तो मुझे इतने सारे भक्त और दोस्त मिले, वो तुम्हारी वजह से। मैं अब यशस्वी राजा कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने लंका को हराया, रावण को मैंने हराया। तो पूरी दुनिया में मेरा डंका बजा, वो तेरी वजह से। अब ये पूरी कहानी को आप देखिए, क्या निकल के आता है। भगवान भी एटीट्यूड देखिए आप उनका, पॉजिटिव एटीट्यूड। फ्रेंड्स, इसलिए वो भगवान है। एक और स्टोरी की तरफ मैं आपको लिए चलना चाहता हूं। I don't know whether you are able to see a lady, her name is प्रज्ञाबेन शाह। इनको कैंसर हुआ था, इनको कैंसर हुआ था, और कैंसर में से वो बाहर निकल के आई। उनके दोनों बच्चों को मैंने पढ़ाया है, कर्णिक शाह एंड वर्णाली शाह। दोनों अभी यूएस में हैं, दोनों अभी गूगल अमेजोन जैसी कंपनियों में बहुत बड़े सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हैं। एक दिन मुझे प्रज्ञाबेन से मिलने का मौका मिला, उन्होंने मुझे गिफ्ट में ये किताब दी थी। उसी किताब का ये पहला पृष्ठ मैं आपके सामने रख रहा हूं, कैंसर मारो परम सखा। मैंने प्रज्ञाबेन को पूछा, प्रज्ञाबेन आबू टाइटल को यहाँ पे, कैंसर किसी का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है? बोले धवल भाई यस, कैंसर मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है। कैसे? बोले मुझे कैंसर हुआ था, शी हैज सर्वाइव्ड, लगभग 25-27 साल हो चुके हैं, अब वो बिना कैंसर के अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रही। 1-8 साल पहले मेरी उनसे फोन पे भी बात हुई थी। तो मैं बोला कैंसर बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है? बोले हम जैनिज्म में मानते हैं, शाह जैन। बोले हमारे हिंदू कल्चर में, ट्रेडिशन में, जैनिज्म में यह माना जाता है कि आपके पुराने जो बुरे कर्म हैं, बुरा काम किया है, तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो बोले मुझे कैंसर हुआ, कितनी तकलीफ हुई, कितनी पीड़ा हुई, तो मैंने जितने पुराने मेरे कर्म खराब थे
वो अब चले गए क्योंकि कैंसर में मैंने सब कुछ भुगत लिया। सी द पॉजिटिव एटीट्यूड। बोले मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, न केवल हस्बैंड, मेरे ससुर, उन्होंने एक अच्छा ससुर कैसा होता है, उन्होंने एक एग्जाम्पल प्रस्थापित किया। मैंने बोला कैसे? बोले मेरे ससुर ने ऐसा व्रत लिया था कि जब तक प्रज्ञा की बीमारी चल रही है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है, तब तक मैं रोज सुबह गाय को रोटी खिलाने के बाद ही खाना खाऊंगा। आप सोचो उसमें क्या है, बहुत सारी गाय घूमती रहती हैं, खिला देने की एक रोटी। बोले राहुल भाई ऐसा नहीं है, जब धुआंधार बारिश होती थी अहमदाबाद में, कभी कभी 2 दिन तक सूरज नहीं निकलता है, गाय मिलती नहीं है, तो 2 दिन तक मेरे ससुर ने कुछ भी खाना नहीं खाया है अपनी डॉटर इन लॉ के लिए। बोले उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया कि एक ससुर अपनी बहू के लिए क्या कर सकता है। अब आप देखिए, लाइफ को देखने का नजारा देखिए, पर्सपेक्टिव जिसे हम बोलते हैं, आप किस नजरिए से लाइफ को देखते हैं। एक बहुत अच्छे गुजराती के लेखक है, इनका नाम है रतिलाल बोरीसागर। शायद आपकी पीढ़ी ने ये नाम नहीं सुना होगा, बट मेरे कुछ सीनियर फ्रेंड्स यहां पर बैठे हैं और गुजराती के जो चाहक हैं उनको शायद ये नाम जाना पहचाना लगे, रतिलाल बोरीसागर। बहुत ही अच्छा गुजराती में उन्होंने साहित्य लिखा। शायद आज से 30-40 साल पहले उनके हार्ट में कोई तकलीफ हुई, उनको डॉक्टर ने बोला कि आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। उन दिनों एंजियोग्राफी अहमदाबाद तो क्या पूरे गुजरात में नहीं होती थी, एंजियोग्राफी के लिए अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई जाना पड़ता था और काफी तकलीफ दे वो पूरी प्रक्रिया होती थी, जिसमें एंजियोग्राफी करके डॉक्टर पता करते थे कि कहीं पर आपकी नसों में तकलीफ तो नहीं है, ब्लॉकेज तो नहीं है। तो ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया में से उन दिनों पास होना पड़ता था। हालांकि अब तो अहमदाबाद में बहुत सारे डॉक्टर, मुझे बताया गया कि 10,000 में ये पूरी प्रोसेस 10 मिनट में हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं आज से 30-40 साल पहले की एंजियोग्राफी। रतिलाल भाई ने इसमें से पास होने के बाद किताब लिखी, इसका नाम दिया एंजॉयग्राफी। मोदी साहब बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी, आफत में अवसर में पलटिए। सम ऑफ यू मे नॉट अंडरस्टैंड दिस टिपिकल गुजराती। आफत इज अ चैलेंज, अवसर में पलटिए। अवसर इज व्हाट? अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड्स, कठिन पेपर हम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं। मेरे सामने मनीष भाई है, संजय सर हैं, मैडम है। हम लोग कठिन पेपर किसके लिए बनाते हैं? जो विद्यार्थी बहुत ब्राइट है। जितने ब्राइट बच्चों की बैच है, हम लोग मेहनत करके कठिन पेपर बनाते हैं। भगवान भी कठिन परीक्षा उन्हीं की लेता है जिसे भगवान चाहता है। आपके ऊपर कोई कठिन कसौटी आ जाए तो इसको प्रसाद मान के चलिए कि भाई हाँ। और इंजीनियरिंग के 4 साल में ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस आपके सामने आने वाली है। न केवल 4 साल में, आने वाली पूरी जिंदगी में कठिनाई, तकलीफ, चैलेंजेस बहुत सारी आने वाली। आप उससे मुंह मोड़ लोगे तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। किसी ने यहां पर मेरे बारे में बोला इतने अवार्ड है, इतने साल से है, पीडीयू में डायरेक्टर है। सुन के बहुत अच्छा लगता है ना। कोई कोई मुझे पूछते हैं, अरे तू डायरेक्टर થઈ गया। फॉर हिम एज इफ कुछ मैजिक हो गया। सुनने वाले के लिए कुछ चीजें मैजिक सी दिखती हैं, सुनाई देती हैं, बट वो बंदे को आप पूछो कि 29 साल किस तरह से उसने निकाले होंगे। सुबह 4 बजे 5 बजे। जय वसावड़ा का एक बहुत अच्छा किताब है, आप अगर जय वसावड़ा नाम सुना है तो, सरदार बनियानो संताप। अगेन आई लव गुजराती लिटरेचर, दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक। सरदार बनियानो संताप। व्हाट इज सरदार? Sardar, your head of the department is a Sardar, your director, your principal is a Sardar, your father is a Sardar of your family. उनको पता है कि कितनी तकलीफें होती है। तो हो सकता है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सरदार हो। आने वाले समय में Amazon, Google, Snapdeal, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंप्यूटर के लिए वेट कर रही है।
उसमें आपके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना माने आप सबसे काबिल हो। कई बार इंटरव्यू में बच्चे निकल के आते कि सर मैंने तो खाली 5 मिनट में जवाब दी दो, એટલે તમે સાવ જવા દીધો છે। वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। मैं बहुत सारी पैनलों में बैठता हूं, हम ज्यादा टाइम किसको देते हैं, किस कैंडिडेट को, जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा है। सबसे ज्यादा इंटरव्यू अगर आपका लंबा चला है, इसका मतलब आपके सिलेक्शन के कुछ चांसेस हैं। 2 मिनट में निकाल दिया, इसका मतलब है भूखा बोलाएगा आपला। आई एम सपोज टू मेक माई सेल्फ रेडी। आगे चलिए भाई। थॉमस अल्वा एडिसन, आप बोले सर ये बुजुर्ग लोगों की बात सुना रहे हो, प्रज्ञा बहन ने, रतिलाल भाई ने, थोड़ा फॉरेन टच भी होना चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन आप नाम जानते हो, क्या है वो? हाँ, फेसबुक, लाइट बल्ब, जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया। मैंने कहीं पर पढ़ा है, वीआईपी गैलरी, मोबाइल बल्ब, लाइट बल्ब का जिन्होंने आविष्कार किया, मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। समवेयर आई रेड, बिफोर इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिक बल्ब ही फेल्ड 10,000 टाइम्स। આપણે તો 2 વાર ફેલ થઈએ તો તરત જ એ મારી સાથે જાવું થાય છે, હું જ કમનસીબ છું, है ना? सीधा नसीब को कोसना शुरू कर देता है। मेहनत आपकी एज में सबसे बड़ी पूंजी अगर आपकी है, आप कुछ कर सकते हो तो वो आपकी मेहनत है। सोशल मीडिया पे मैं भी हूं, यू कैन फाइंड आउट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। आई एम वेरी एक्टिव, बट हर एक का एक समय होना चाहिए। मुझे आपको आज ये भी बताना है, भारत को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप बोलो कि सर आप तो पीडीयू में हो, आप वहां जाके ये भाषण करो। नहीं, आप सब भारत का भविष्य है। और जो आप पूरी पूरी रात भर, जब तक आपकी उंगली का फ्रैक्चर नहीं हो जाता, तब तक आप ये जो इंस्टाग्राम की रील ऊपर से नीचे करते हो, ठीक है, उसमें भारत का भविष्य भी नीचे हो जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आज इस ऑडिटोरियम में 150 में से 2 बच्चे भी थोड़ा समझ जाए, थोड़ा। आप अगर इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, लिंक्डइन को 2 घंटे दे रहे हैं, आप नक्की करो कि मुझे 2 घंटे देने चाहिए। ज्यादातर आप लोग मुझे बताएंगे कि जब आप गूगल पे कुछ सर्च करना शुरू करते हैं, लेट अस से योर प्रोफेसर हैज गिवन यू अ टॉपिक, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एंड ही हैज आस्क्ड यू टू फाइंड आउट समथिंग। शुरुआत तो 9, 10, 11, 12 बजे होती है। शुरू के 10 मिनट तो एनवायरमेंट ही होता है, बट धीरे धीरे एनवायरमेंट बदल जाता है। और आधे घंटे के बाद, एम आई करेक्ट, आधे घंटे के बाद कहीं और होते हैं, सोचा भी नहीं था कि हाँ। और फिर तो धीरे 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 जैसे रात बढ़ती है, आप भी फिर आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर 4-5 बजे मम्मी आती है कि आज शू करे थे तू। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप 17, 18, 19 साल के हैं, आपको अपनी जवाबदेही का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। चॉइस इज योर्स। मैं तो अभी 2:50 पे यहां से चला जाऊंगा, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है। मेरे नेक्स्ट इंटरव्यू में आप में से कोई एक्सपर्ट हो, तुम्हें मिला है पीडीयू से कि पुजारा सर का नेक्स्ट प्रमोशन है, उसमें तुम एक्सपर्ट की तरीके से बैठना, इनमें से किसी प्रोफेसर को भी शायद नहीं मिला है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि मैं आपको यहां इंप्रेस करने नहीं आया, मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आया, मैं आपको कुछ भी बोध पाठ देने के लिए नहीं आया। मेरी लाइफ के कुछ लेसन्स। मेरा जन्म हुआ एक छोटे से गांव के, शायद 5-7 हजार की बस्ती का छोटा सा गांव। मेरे माताजी और पिताजी, माताजी का अभ्यास 10 और पिताजी शिक्षक, छोटी सी स्कूल में शिक्षक। शायद मेरे परिवार में और शायद हमारे संजय सर की भी लगभग सेम कहानी है, क्योंकि हम दोनों ने एक ही कॉलेज में 4 साल एक ही क्लास में बैठ के पढ़ाई करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। बहुत ही हमारी कक्षा का सबसे जो ब्राइट विद्यार्थी है उसमें आपके संजय सर का नाम था। तो हम लोगों ने एक ही क्लास में
एक ही फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग निकले। आज यहां तक की ये जो सफर हम लोगों ने तय की है, उसमें शायद कोई मुझे पूछे, बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं, रिपोर्टर्स मुझे पूछते हैं, बहुत सारे मेरे आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, तो मुझे कोई पूछता है कि सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो मेरे हिसाब से मेरे सीक्रेट यही है, एक डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन। दूसरा टाइम मैनेजमेंट। संजय सर को मैंने बोला था कि मैं 1:30 तक पहुंच जाऊंगा। अब ऐसा नहीं कि मैं अपनी कॉलेज में आराम से 3 एसी वाली मेरी ऑफिस है तो मैं आराम से अंदर ऐश कर रहा हूं, नहीं, बहुत सारी जवाबदेही मेरे ऊपर है, क्योंकि 5-5.5 हजार बच्चे हैं। जैसा ओरिएंटेशन यहां पर है, हमारे यहां भी तैयारियां चल रही हैं, लगभग 1500 बच्चों का ओरिएंटेशन हमें भी करना है। बट आप सर को पूछ सकते हैं, मुझे सर ने बताया कि 1 बजे बच्चों को बोला है बैठने के लिए, और सर आप हो सके तो 1:30 1:20 तक आ जाइए। और लगभग हमने 1:20 पे यहां पर मैंने एंट्री ले ली थी और शार्प 1:30 हमने शुरुआत कर दी। तो डिसिप्लिन, दूसरा मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक मिली सेकंड कीमती है। आप बोले एक फेंको, 1 मिली सेकंड से क्या होता है? सिल्वर मेडल मिलता है ओलंपिक में। ये साहिबा तो ऊपर थी गई। आप गोल्ड मेडल जिसको मिला और सिल्वर मेडल ओलंपिक में जिसको मिला 400 मीटर की दौड़ में, आप जरा चेक करोगे ना टाइम का फासला, हार्डली अ फ्यू मिली सेकेंड्स। तो बस कुछ मिली सेकेंड, वो भूमि पंचाल 10 मिनट के लिए एयर इंडिया का फ्लाइट चूक गई, चुकना नहीं है आप लोगों को, बट उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। बट भूमि के साथ जो हुआ वो बहुत रेयर होता है, बट जो टाइम से पहुंचते हैं वो नरेंद्र मोदी बन सकते हैं। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं यहां पर, बट जिनसे भी आपको जो चीजें अच्छी लगे वो लेनी चाहिए। तो डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, और तीसरी और आखिरी चीज बता रहा हूं, एथिक्स एंड ऑनेस्टी इन लाइफ। भारत को एथिकल लोगों की जरूरत है। मैं 1 या 2 किस्से, फॉरेन के किस्से आपको सुना रहा हूं, फिर थॉमस अल्वा एडिशन पे वापस आऊंगा। मैं आल्बनी के एयरपोर्ट पे उतरा, अमेरिका के आल्बनी करके एक जगह है। मेरा विद्यार्थी कुणाल परीख मुझे लेने वाला था एयरपोर्ट पे। अगले स्टेशन में चार्ल्सटन से निकला था, चार्ल्सटन से आल्बनी। जब मैं चार्ल्सटन से अपना लगेज लेके बैठा था तो मुझे बताया गया कि सर आपके पास ज्यादा लगेज है, आपकी बैग थोड़ी भारी है, तो आपको आल्बनी एयरपोर्ट पे उतरने के बाद $20 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तभी आपकी बैग आपको बाहर मिलेगी। तो मैं बोला ठीक है, अपने यहां कभी कभी तो पहले ही ले लेते हैं, पाछे भरोसे नहीं पाछा। वहां उल्टा था, चार्ल्सटन से मुझे चढ़ा दिया एयरक्राफ्ट पे एक्स्ट्रा लगेज के साथ। कितना बोला? $20। बोले उतर के एल्बनी एयरपोर्ट पे दे देना। ठीक है, मैं एल्बनी एयरपोर्ट पे उतरा और मुझे ऑफिसर ने बोला कि हे यू हैव एन एक्स्ट्रा बैगेज, यू विल हैव टू पे $20। अपने रेडी थे एकदम, पर्स में से $100 का एकदम निकाल के उनको दिया। वहां पर ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और छोटा मोटा यूज करते हैं डॉलर, बट एक सम से $100 कोई नहीं निकालता है। तो मैंने $100 निकाला, मैं रियल बात आपको बता रहा हूं। तो मुझे बोला कि सर चेंज नहीं है, आई डोंट हैव चेंज, विल यू प्लीज गिव मी $20। मैं कीधु के मारी पासे पर नहीं। सो ही ट्राइड, ही पर्सनली वेंट, मुझे बोला कि आप बैठिए, ही वेंट, he asked his colleagues nearby, nobody agreed to give changes because they were not having, उनके पास नहीं थे। अब ये ऑफिसर आके मुझे बोलता है कि सर इफ यू डोंट माइंड, सुनिएगा जरा, हाँ कान को थोड़ा जोर दीजिएगा, सर इफ यू डोंट माइंड वी विल नॉट चार्ज फ्रॉम यू। गुजराती क्यारे माइंड करे, मफत में लेवानो, पक्का गुजराती। મને તો આમ એકદમ આમ ખુશીની લહેર આમ એકદમ
મને આલ્બેની એ વખતે એટલું સારું લાગ્યું, $20 એટલે સીધું એ વખતે $50 $1 હતો, એટલે આપણને એમ સીધું કે 20 ગુણ્યા 5 એટલે લગભગ એ વખતના ₹1000, ₹1000 બચવાનો કેટલો આનંદ આપણને એ વખતે. એટલે આપણે તો સીધું કે આનો વિચાર બદલાય, પાછો ક્યાંકથી કોઈ ચેન્જ એને આપી દે, એના કરતા ઝડપથી હવે એરપોર્ટની બહાર જતું રહેવું. When I reached my old student Kunal, evening during dinner, I asked Kunal, why did he say? उस ऑफिसर ने ऐसा क्या बोला कि if you don't mind, I will not charge. Kunal said, sir, यहाँ कोई मुफ्त का कुछ लेता नहीं है, यहाँ मुफ्त का लेना बहुत ही खराब बात मानी जाती है. इसलिए ही सेट जर्मनी के एयरपोर्ट में रात को 2 बजे उतरा. मुझे वहां के एक हिल स्टेशन पे कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था. मैंने एक रेल में बैठा और जब मैं लगभग 3:30 बजे रात के उस हिल स्टेशन पे उतरा, मेरा पहला अनुभव, पूरे रेलवे स्टेशन पे बर्फ पड़ी है. ऑनेस्टली मैंने ऐसी बर्फ अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं थी. 3:30 बजे रात के कोई नए देश की हिल स्टेशन पे आप उतर रहे हो, आपने इतनी ठंडी, अहमदाबाद की 45 डिग्री आपने देखी है, परंतु -10 आपने अभी तक एहसास नहीं किया. छोटा सा हिल स्टेशन, मैं ऐसे सिकुड़ते सिकुड़ते अपना बैग लेके बाहर निकला. 1 या 2 टैक्सी वहां पर खड़ी थी और जो लोग वहां के थे, जो वहां उतरे 4-5 लोग, या तो उनको लेने कोई आया था या 1-2 थे, फटाक से जाके वो टैक्सी में बैठ गए. और मैं थोड़ा डर रहा हूं, नई जगह, ठंड है, एक्चुअली यही स्टेशन पे मुझे उतरना है ना. आप मेक श्योर करते, आप पूछो कि भाई आप આવી તને આજ આ બરાબર હું ઉતર્યો છું, 2-4 જણને આપણે પૂછીએ, કરેક્ટ. वहां तो ऐसा है नहीं कि भाई आ बराबर आ सिंह वखणा एज भरूच. By the time I reached the last taxi, बस 3:30 रात के, एक बंदा उसमें बैठ गया. तो मैं बोला ये पूरी रात मुझे इस रेलवे स्टेशन पे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब टैक्सी नहीं है और हो सकता है सुबह 7 बजे 8 बजे मुझे टैक्सी मिले और 9 बजे से मेरी कॉन्फ्रेंस है. मैं फिर भी डरते डरते उस बंदे, और आप सबको थोड़ी बात पता होगी कि जर्मनी में ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं टू स्पीक इन जर्मन. I tried my level best to convince the taxi driver, but he said no, I am already occupied, I have a passenger. The passenger, he was listening dialogue between me and taxi driver. So he said, if you don't mind, I can give you a ride. If you don't mind, I can give you a ride. आप मेरे साथ सवारी कर सकते हैं. अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि रेलवे स्टेशन पे पूरी रात 3:30 से सुबह 8 बजे तक इस ठंडी में मेरा राम बोलो भाई राम हो जाए. उससे तो अच्छा है कि ये रिस्क ले लो, गाड़ी में अपना राम बोलो भाई राम होगा. बैठ गया. They were talking in German. मैं बोला कि मुझे मेरी सुपारी दी जा रही है, क्या ये लोग बातें कर रहे हैं. तो फिर मैंने उनकी बातों को तोड़ने के लिए उसको पूछा कि you are from which place. He also asked me, you are from which place. I said, I am from India. Hey, you are from Gandhi's place. I said, not only Gandhi, Gandhi state, पोरबंदर. फिर मुझे थोड़ा एकदम, you know Gandhi, our Gandhi, महात्मा गांधी, एनके गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी वाइफ को भी मैं जानता हूँ. You want to know कस्तूरबा जी, everything, whole story I can tell you. The ride was of 20-25 minutes. He took lot of interest in M.K. Gandhi, महात्मा गांधी. मैंने उसको सुनाया. उसके पहले उसने ड्राइवर को बता दिया था कि पहले इसको उतारना, ये हमारा गेस्ट है. मेरी होटल आई और मुझे बोला कि दिस इज योर होटल, गेट डाउन, मे हेल्प यू. मैं तो अपने अर्धा बेची रही है. રાજકોટમાં તો અમારે એવું જ કે 10-10
10 તું આપ હું 10 આપું તો મેં પેલા ડ્રાઈવરને કીધું કે ભાઈ અહીંયા સુધી જ ગણજે પાછો એને મૂકવાના ધ્યાનો ના કરતા અહીંયાના કેટલા થાય કેટલા યુરો તો એ અડધા હું આપી દઉં અને પૂછી લે અડધા ચાલશે पीलो कहे कि मारे एक ही नहीं जोता तुम गांधी के गुजरात से हो यू आर फ्रॉम गांधीज प्लेस मैं बोला कि गांधी तमार कोई लगन वगन में आया था तमारे क्या आटलू બધું તમને ગાંધી માટે છે बोले वी लव गांधी वी लाइक गांधी बोला भाई मुझे भी थोड़ी क्यूरियोसिटी कि गांधी को तुम इतना क्यों चाहते हो देखो हमें प्राउड ही नहीं है हमें अपनी चीजों पे प्राउड नहीं है हमें अपने लोग हमें झांसी की रानी हमें राणा प्रताप पे प्राउड नहीं है वो तो आप बोलते हो आते हो 26 जनवरी को 15 अगस्त को फ्लैग होइस्टिंग के लिए आप आते हो तभी आप बोलना कि मुझे गर्व है अपने सोल्जर्स के लिए बाकी ऑपरेशन सिंदूर बोलने से आप भारत के नागरिक नहीं बन जाते हैं मुझे बोला कि सर सर गांधी हमें पसंद है गांधी हमें पसंद है क्योंकि गांधी ने जिस तरह से अंग्रेजों को खदेड़ा उसकी स्ट्रेटेजी हमें पसंद है उसने बिना मारे अहिंसक आंदोलन जो चलाया इसलिए हमें गांधी हमें पसंद है क्योंकि गांधी की ऑटोबायोग्राफी सत्यनारायण प्रयोगो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ हमने पढ़ी है और जिस तरह से एक देश का राष्ट्रपिता अपनी किताब में अपनी गलतियों के बारे में टाइम मिले इंस्टाग्राम में से तो कभी पढ़ना एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप कलाम साहब को पढ़ना आप कभी फेल नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी फेल की डेफिनेशन दी FAIL फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग कलाम साहब को किसी ने पूछा कि आप हैंडसम नहीं है आजकल आप लोगों को भी होता है ना कौन सा हीरो आजकल आपका फेमस है कोई नहीं नाम तो सुना ही होगा कलाम साहब said I am not handsome कलाम साहब ने अपनी किताब में लिखा I am not handsome but I give my hands to someone I am not handsome आपको मैं बोलूं कि मिस वर्ल्ड पिछली 5 मिस वर्ल्ड के नाम दीजिए बॉयज देखा जाए तो नहीं बोल सकते हैं संजय से नहीं डांटेंगे 5 मिस वर्ल्ड नाम दे सकते हैं अच्छा 5 लोगों जिनको 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल मिला हो ओलंपिक में ऐसे 5 लोगों का नाम स्विमिंग में चलो स्विमिंग में बोलो ना यार मैं बोला ना आप तो बहुत ब्राइट हो एक माइकल फेल्प्स नेक्स्ट 5 बोले मैंने अच्छा अब एक तीसरा और आखिरी सवाल करूं आप 70 साल के 18 साल के 19 साल के हुए JEE दिया गुडसेट दिया बोर्ड दिया 10th दिया कभी तकलीफ पड़ी परेशानी हुई ऐसे 5 लोगों के नाम दे सकते हो जिन्होंने आपको अपनी लाइफ में जरूरत पड़ने पे हेल्प करी दे सकते हो ओके वेरी गुड मैं नहीं पूछूंगा नहीं बट दे सकते हो ऐसे नाम जल्दी याद आएंगे कौन से नाम जल्दी याद आएंगे मिस वर्ल्ड के 400 मीटर रेस में जाने वाले ओलंपिक एथलीट के तुम्हें जिन्होंने हेल्प किया है ऐसे 5 लोग What is the lesson to be learned? हेल्प करो आप रतन टाटा को आज भी याद करते हो आप नारायण मूर्ति को आज भी याद करते हो क्योंकि उन्होंने अपने देश में ऐसी एक मुहिम चलाई 2:58 को प्लेन क्रैश होता है और शाम होते होते तो टी चंद्रशेखर
टाटा के चेयरमैन डिक्लेयर कर देते हैं कि 1 करोड़ रुपया, उन्होंने फिर भी कितनी डाउन टू अर्थ होके बोला कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा खराब हादसा नहीं देखा है, ये 1 करोड़ तो कुछ नहीं है उनकी लाइफ के सामने। फिर भी जिगर चाहिए। बॉम्बे में जब अटैक हुआ था ताज होटल पे, तो जितने लोग भगवान को प्यारे हुए थे उन सबकी स्मशान यात्रा में उनके घर पे रतन टाटा तब गए थे। इंसान ऐसे ही बड़ा नहीं होता है। आई एम नॉट हैंडसम बट आई गिव माई हैंड्स टू समवन। अगर आप छोटे हैं, नाटे हैं, काले हैं, ये हैं, वो हैं, हेयर स्टाइल अच्छी है, नहीं है, स्पैक है, इस कैटेगरी में एडमिशन लिया, उस कैटेगरी में, उससे कुछ नहीं बदलता। आज भी हम में से कोई स्वामी विवेकानंद कौन सी ज्ञाति से है, 5 गामना पटेल के 6 गामना पटेल आपने नहीं पूछता, पूछिए। गांधी को हमने कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारी हाइट कितनी है। लता मंगेशकर को आप सब ने, एटलीस्ट हमारी पीढ़ी ने तो बहुत चाहा, उनका फेशियल एक्सप्रेशन देख के। सचिन तेंदुलकर को आप में से कई अभी भी चाहते हैं, क्या उसकी हाइट देख के? फ्रेंड्स, आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बस एक चीज और आपको याद रखनी है एटीट्यूड के ऊपर। ये मेरा जो दिखावा है वो मेरे कंट्रोल में। मैं आपको 3 कंट्रोल थियरी सिखाता हूं। 3 कंट्रोल थियरी। व्हाट इज 3 कंट्रोल थियरी? एक कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं। आपका दिखावा, आपका हुलिया आपके हाथ में नहीं है। वो जेनेटिकली, बायोलॉजिकली आपके पेरेंट्स जैसे थे वैसे आपको मिला है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरा कंट्रोल 50-50 आपके कंट्रोल में है। पुजारा सर का लेक्चर अटेंड करना, नहीं करना, नहीं भी कर सकते। और तीसरी चीज पूरी मेरे कंट्रोल में है। 4 साल अच्छी पढ़ाई करना, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, जो भी ब्रांच मुझे मिली है, क्योंकि आपके पिताजी के, आपकी माताजी के बहुत बड़े सपने होते हैं। कभी भी टाइम पास करते समय, पैसा खराब करते समय 1 मिनट के लिए सोचना, अपने पिताजी को देखना। कभी भी क्लास में, एग्जाम हॉल में चोरी करने से पहले 1 मिनट के लिए सोचना, आ मारी मम्मी ने खबर पड़से तो એને કેવું લાગશે, એ કેવી ઝાપટ મારશે એ પછી વિચારજો। મારી મમ્મીને ગમશે જો મને સંજય સર એવું કહેશે કે ભાઈ, મનીષ સર એવું કહેશે કે ભાઈ, you have been caught in examination, unfair means call your parents, will they be happy? मैंने आपको 3 चीजें सिखाई, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और एथिक्स। डिफिकल्ट है, आई टेल यू। और जैसे जैसे आप अपने पद में ऊपर जाते हैं, मेरे साथ मनीष सर, संजय सर एग्री करेंगे कि जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाते हैं बहुत कठिन हो जाता है। और चौपाटी पे तो बहुत जाते हैं, चांद पे तो कोई अकेला ही जाता है ना, एक आध ही जाता है शुभांशु, और उसके लिए पूरे भारत को नाज होता है। तो आपको वो राकेश शर्मा बनना है, आपको वो शुभांशु बनना है, तो आपको एथिक्स, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। तो थॉमस अल्वा एडिशन 10,000 बार फेल हुए। एक दिन दिसंबर का महीना था, રીંગણનો ઓળો અને બાજરીના રોટલા એની વાઈફે બનાવ્યા હતા, बहुत સરસ, અને મજાથી બેસીને ટેસડા करतो હતો। और किसी ने आके बोला कि थॉमस, तुम्हारी लेबोरेटरी में आग लग गई है। एट द एज ऑफ 67, रिटायरमेंट की एज, आप पढ़िए, यहां पर लिखा है, lost his leg at the age of 67, which cost a few $million at that time, and it had very little insurance. બરાબર આમ રોટલાનો બટકો ને અંદર રીંગણનો ઓળો ને આમ બરાબર મૂકવા જાય છે, ને કોઈએ કીધું આ બધું રીંગણનો ઓળો ને એવું હતું નહીં, આ તો તમને થોડુંક ઇન્ટરેસ્ટ છે બનાવો। પાછા તમે બહાર જઈને કે ટીવીના ડાયરેક્ટરે કીધું કે થોમસ અલ્વા એડિશન રીંગણનો ઓળો બહુ ભાવતો હતો। ये हम लोगों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है, जो हम लोग स्टेज स्पीकर होते हैं उनको थोड़ा मसाला ऐड करने का, ताकि आपको थोड़ा मजा आए।
So he was on his dinner table and he got a phone call, or maybe somebody came and said, "Hey Thomas, there is a fire in your laboratory." At the age of 67, imagine. He rushed to the venue and he saw it was a huge fire, huge burnout. His first reaction, he could have said, "Hey Bapaya, mari gaya." No, he did not say this. He asked his son, "Hey, क्या तार मम्मी बोलाई है? આવી આગ એને ક્યારે જોઈ નહીં હોય ને જોવાય નહીં હોય. પહેલા જોઈ લે આવી પણ આગ હોય. And just within 3 weeks later, he invented the phonograph. इस पूरी दुर्घटना के just 3 हफ्ते बाद he came out with a patent. He came out with an invention of phonograph. अब जज्बा देखिए लोगों का, आप एटीट्यूड देखिए लोगों का. इसमें से कोई तकलीफ हमारे ऊपर नहीं आई, फिर भी खड़े हो जाते हैं. खड़े होकर आगे चलना, दैट इज इंजीनियरिंग. हार्वर्ड में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा. हार्वर्ड में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई. When a person gets a job, 85% of the time it is because of his attitude. हार्वर्ड की स्टडी में मैडम पाया गया कि जिन लोगों को अच्छी जॉब मिलती है, 85% is because of the attitude. मैं बहुत सारी पैनलों में इंटरव्यू लेने के लिए बैठता हूं. इसरो भी मुझे बुलाता है साइंटिस्ट के इंटरव्यू के लिए. मैंने हम लोग 3 चीजें देखते हैं. A फॉर एटीट्यूड. अगर एटीट्यूड अच्छा है तो बंदा चल जाएगा. S आपके लिए इंपॉर्टेंट. A फॉर एटीट्यूड. S फॉर स्किल, हैंड्स ऑन स्किल. 4 साल में पढ़ाई करना, रट्टाबाजी मत करना. हैंड्स ऑन स्किल, पहले ही दिन से कोडिंग सीखना, पाइथन सीखना, सी प्रोग्रामिंग सीखना, जावा प्रोग्रामिंग सीखना. कोई भी ब्रांच में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सीखना पड़ेगा. तो बोले सर AIML आपड़ू नहीं हो, ये तो कंप्यूटर वाला. AIML कोई कंप्यूटर का नहीं है. AIML मेरे हिसाब से, यू मे डिफर, AIML एक मैथ्स की ब्रांच है. रिग्रेशन, स्टेटिस्टिक्स. और कुछ हफ्तों पहले मेरे एक आर्टिकल दिव्य भास्कर में आया है, आपको टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा. मैंने लिखा है सबको AIML सीखना पड़ेगा. सबको, मम्मी को, पापा को, भाई को, सर को, आपको, बिजनेसमैन को, ट्रैवल एजेंट को. आने वाले समय में सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा. सर आपका सिलेबस में नहीं तो दिस इज एक्सक्यूज. बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल है. यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है. अभी समय है, क्लासेस फुल फ्लेज शुरू नहीं हुई है. AIML का एक छोटा सा 6 घंटे का, 10 घंटे का कोर्स कर लो. सी प्रोग्रामिंग शुरू कर दो अभी. मेरे ख्याल से सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर में सबको पढ़नी है. शुरू कर दो अभी से. और फिर क्लास में जब मैडम आके शुरू करेगा, पॉइंटर, मैडम आई नो बेटर देन यू. और हम शिक्षक के लिए गर्व की बात ये होती है कि जब हमारा बच्चा हमसे ज्यादा सीख जाता है. एक शिक्षक की सक्सेस क्या है मेरे हिसाब से, यू मे डिफर नहीं सर, जब हमारा बच्चा आके मुझे लगे सर आपने सीईओ तब बीजीएससी में प्रोफेसर छो, ऐसा बोलते नहीं है. पैर छूते हैं, पैर छूते. मिशन मार्स आपने शायद ये फिल्म देखी होगी. 4 लड़कियों की उसमें कहानी है. उसमें से एक मीनल संपत को मैंने पढ़ाया है. अभी भी इसरो अहमदाबाद में काम करती है. मैं संडे को रात को 10 बजे फोन करता हूं, मीनल तू आना यहां आके एक लेक्चर लेना. सर अभी तो लैब में हूं. मैडम एक बच्चे की मां है, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली. फॉरगेट अबाउट सैटरडे संडे. तब जाके हम लोग मार्स पे उतरते हैं. आप डेडिकेशन देखिए लोगों का. इसरो के डायरेक्टर, हमें प्राउड होना चाहिए, नीलेश भाई देसाई, NL देसाई. कितने बजे घर जाते हैं रात को? बोले 2, 3, 4 तो बज जाते हैं रात के. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई मीट हिम फ्रीक्वेंटली. अब तो उसके ड्राइवर को और पीए को भी मैं जानता हूं. जाता हूं तो पहले उसके पीए को बोलता हूं, वो मुझे पहचानता है. ए धवन सर તમે આયા છો? આ રાતે સાહેબ કેટલા વાગે ઘરે ગયા હતા?
तो 4 बज गए थे। हाँ પછી તો રાતે 4 વાગે ગયા તો સવાર 12 વાગે આવ્યા છે। અરે ના સાહેબ, સવાર તો મારે 8:30 હાજર हो। तब जाके पूरी दुनिया में भारत स्पेस में अपना डंका बजा सकता है, तब जाके साउथ पोल पे आपका मिशन सक्सेसफुल होता है। रात को आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, रात को 4 बजे घर गए, मैं फिर पूछता हूँ नहीं सर, પછી તો આમ સુઈ જતા હશે ને સીધા થાક્યા હોય એટલે ટીવી વીવી જોઈએ થોડી વાર, પછી ઊંઘ આવે તો ઊંઘે, નહીં તો પાછા તૈયાર થઈને પાછા। See the attitude, see the culture, see the dedication। और यहां हम बच्चों को बोलते हैं कि क्लास सर स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। कोरोना में है मनीष भाई, रोज मेल आवे मने, सर कोरोना में स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। और अभी स्क्रीन टाइम अभी नहीं, अभी तो पीछे भी चल रहा है मैडम, मुझे बारी बारी जाना पड़ता है वीआईपी गैलरी में। तो हार्वर्ड की स्टडी ने बताया 85% ऑफ योर सक्सेस इज बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। ASK, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल एंड K फॉर नॉलेज, है ना। नॉलेज इज ऑल्सो पावर। आगे, we still have 15 minutes। What do you see in this image? I don't know whether it is visible or not. What do you see? Do you see? क्या देखते हो? हाँ, बच्चों ने बेटा ने बताया कि सर एक ग्लास है, आधा भरा हुआ है। वेरी गुड। आधा खाली भी है ना। आगे जल्दी बेटा। द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, आधा खाली है। नेक्स्ट, द ग्लास इज हाफ फुल, ये भी बोल सकते हैं, ये भी सही है। आधा खाली है तो आधा भरा भी है। और क्या, द ग्लास इज फुल्ली फिल्ड, ए सर ग्लास आखो भरेलो छे, अर्धो पानी थी ने अर्धो एयर थी। अब देखो आउट ऑफ बॉक्स आपको सुने, बिकॉज आप इंजीनियरिंग में, ईसी में है, VGC में है। आगे, there is a space in the glass and we can fill it। दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, चौथा पर्सपेक्टिव। एक ने बोला आधा खाली, एक ने बोला आधा भरा हुआ, एक ने बोला नहीं पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से आधा एयर से, चौथे ने बोला कि नहीं थोड़ी और जगह है, मैं कुछ कर सकता, मैं कंट्रीब्यूट कर सकता। दिस इज एटीट्यूड। सो व्हाट इज एटीट्यूड? Attitude is a state of mind, is a mirror of mind, is an outward expression of our state of mind. This is the way we mentally look at things. It is the way we treat people. Very, very important. आप लोगों के सामने कैसे पेश आते हो। मेरी ऑफिस में एक बंदा काम करता था, पहले की ऑफिस में, किरिट उसका नाम। मेरे बगल में एक मैडम बैठती थी, हम लोग रोज कॉफी के लिए 5-10 मिनट साथ में बैठते थे, सब प्रोफेसर्स, मैडम भी आती थी उसमें। एक दिन आके मैडम मुझे बोले कि धवल सर, ये जो हमारा प्यून है ना किरिट, उसकी मैं कंप्लेन करने वाली, ये काढ़ी नाखो बोगस मानस छे। आई सेड नहीं मैम, किरिट तो अच्छा है। बोले नहीं सर, काम ही नहीं करता है। मेरा तो सब कुछ काम करता है। बोले सर आप कैसे काम देते हो, जरा डेमोन्स्ट्रेट करो ना, हम लोग प्रोफेसर्स को है ना डेमोन्स्ट्रेशन में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो मैं बोला उसमें क्या है, ऐसे जैसे पानी मंगवाना है किरिट से, तो मैं कैसे मंगवाऊंगा। हे किरिट आओ ने भाई, શું છે ઘરે બધા મજામાં, તારી વાઈફ ની પેલી બદલીનો પ્રોબ્લેમ હતો એ સોલ્વ થઈ ગયો, તારી મમ્મીનું પેલું મોતિયાનું ઓપરેશન થઈ ગયું, છોકરાને એડમિશનનો કંઈક પ્રશ્ન હતો તું કહેતો તો મેં ફોન કર્યો તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો, એક કામ કર પાણી લઈ આવ। આ બધું એકમાં નહીં પૂછવાનું હો, वो भी इंसान है ना। हमारे घर पे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट हमारे यहाँ कमला बेन ने મળે છે, हमारा काम वाला बेन। मिसेस पुजारा मुझे बोलती है कि आ नहीं हो तो नहीं चाले, તમે 2 દિવસ ઓફિસે જાઓ વાંધો નહીં, કમળાબેન તો જોઈએ। કેટલું પ્રેમથી પૂછે કમળાબેન ચા પી લો અને કચરો વાળવામાં જરા ધ્યાન રાખજો, સાહેબને પાછું પસંદ નથી। અરે પણ મને ક્યાં પસંદ નથી, તાને પસંદ નથી। अब वो मैडम को मैंने बोला आप किरिट को कैसे बुलाती है, ए सॉरी मासू, ए किरिट या क्या मरी गयो।
कશું કામ કરતો નથી, એચઓડી ને તારી કમ્પ્લેન કરવાની છું. किरीट आएगा, हो गया, पानी ले आओ मेरे लिए, लाओ जो. वो क्या लेके आएगा? खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है. शायद आज इस बात की अहमियत आपको पता नहीं चलेगी जब आप एक्चुअल लाइफ में जाएंगे. This is also part of your attitude. How do you treat people? मैं जैसे अभी आ रहा था तो मेरा ड्राइवर है सोमन, तो मैंने पूछा ऐसे ही बैठे, तो सोमन જમી બાજુ આપણે હજી 2 કલાક થવાના છે. હા સાહેબ, તમે સવારે જ કહ્યું હતું ને કે 1:30 વાગે આપણે VGC જવાનું છે, એટલે આમ તો હું રોજ 2 વાગે જમું, પણ આજે સાહેબ છે ને 12:30 આપણે જમી લીધું. उसको क्या लगेगा कि मेरा बॉस डायरेक्टर है फिर भी मेरी केयर करता है. केयरिंग एंड शेयरिंग. आप सबको इस तरह से ट्रीट करिए, अच्छे से ट्रीट. पहला आप तो अच्छे से ही ट्रीट करो. आप अपनी अच्छाई मत भूलो, आप अपना कल्चर, अपना फैमिली वैल्यूज को मत भूलो. जिसी के साथ बात करो, टीचर सर के साथ बात करो, प्रिंसिपल सर के साथ बात करो, मम्मी पापा के साथ बात करो, फ्रेंड्स के साथ बात करो, वार्डन के साथ बात करो, बस में बात करो. आप ईमेल लिखो. एक रिसर्च हुई है, आपके ईमेल पे से आपका स्वभाव पता चल जाता है. हाउ डू यू राइट एन ईमेल? मेरा एक पूरा सेशन है ईमेल एटिकेट्स के ऊपर. द वे यू राइट विल रिफ्लेक्ट योर कैरेक्टरिस्टिक्स. हाँ, आगे. एटीट्यूड बनता कहां से है? आपके घर का वातावरण, जिस स्कूल में आपने पढ़ाई करी है, जिस कॉलेज में आप पढ़ने वाले हैं, जहां पर आपकी ऑफिस है, आपके रिलेटिव्स, आपकी मम्मी पापा भाई बहन, उनसे भी आपका एटीट्यूड बनता है. टेलीविजन और न्यूज़पेपर देख के भी आपका एटीट्यूड बनता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जब आप ये प्लेन क्रैश के न्यूज देखते थे, शुरू में क्यूरियोसिटी थी, फिर एक वक्त एटलीस्ट मेरे घर में तो आ गया था. मेरे पिताजी और माताजी बोले, जैसे मैं टीवी ऑन करता था ना, बंद कर दे, हमारे नहीं जो. नेगेटिविटी छा जाती है. कोरोना के समय में कुछ लोगों ने अपने व्हाट्सएप बंद कर दिए थे, न्यूज़पेपर मंगवाना बंद कर दिए थे. क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी कभी आपके ऊपर हावी हो जाती है. तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए. कैसे पता चलता है कि ये बंदा नेगेटिव है? आगे 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 आगे. हाँ, symptoms of a person with negative attitude. He will not be a team player. He is like a पोपटलाल. कैंसिल कर दो, बंद कर दो, बैलेंस नहीं, बेकार से, भूखा बोलावी दो. So you will be immediately able to find out these kind of people around you. They are always interested in creating problem rather than solving problem. So they are problem creators. They will do the minimum. वो आपको ऑर्डर ही करते हैं, ऐसा करो, ये करो, वो करो, तुम कर लो, कल कर लेना, ऐसा करो. They are always disrespectful, always negative, always unhappy. कभी खुश नहीं रहेंगे. कोई भी उनको जैकपॉट भी लग जाए ना, तो भी उनको कमी लगेगा. कभी खुश नहीं. जॉब मिली तो बोले जॉब तो मिल गई, वो तो मिलने ही वाली थी, बट अब प्रमोशन मिलेगा कि नहीं? प्रमोशन मिल जाएगा, बोले प्रमोशन तो ठीक है, बट बाजू वाले की मर्सिडीज आ गई, अपनी कहाँ आई है? सो कंपैरिजन, नेगेटिवनेस, अनप्लेजेंट, क्लॉक वॉचर, कंटिन्यूअसली अपनी घड़ी बिल, कैसे 5 बजे और मैं भाग जाऊंगा. These are all symptoms of a negative person. Defensive, argumentative. Next. A few helpful tips before we close. Number 1. Copies of it. Emphasis on positive and diffuse negative. Try to find out positiveness. Every person. God is so great, so great. Everybody sitting in this auditorium, everybody standing in this auditorium, including me, we all have something great. Somebody is a good orator. Somebody is a good
circuit maker, somebody is a good programmer, somebody is a good developer. So God is great. He has given something to everyone. You need to look at that positive part of that person. Even if you dislike, try to find out positivity. Positivity in your father, positivity in your mother, positivity in your teacher, positivity in your principal, positivity in Dhaval Pujara. Find out, find out, find out, find out. And wherever you see negativity, just be away. दूर भागो, नेगेटिविटी से दूर भागो. एक बंदा कांकरिया में सुसाइड करने के लिए गया. कांकरिया तालाब है यहां पर. इतना नेगेटिव, सुसाइड करने के लिए गया. वहां सिक्योरिटी ने उसको पूछा क्या कर रहा है, तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि मुझे कितनी तकलीफ है. थोड़ी देर बाद 2 डेड बॉडी मिली. ऐसे भी लोग होते. मुझे सेकेंड वेव में कोरोना हुआ. आई ऑल्सो गॉट कोरोना. तो मेरे एक मित्र है, बहुत ही विद्वान मित्र, मुझे फोन किया. हाँ मनीष सर, मुझे फोन किया, धवल तने कोरोना થયો. માણસ તો છું હું, માણસોને થાય છે એવું સાંભળ્યું છે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, તાવ છે? તાવ નથી. This is a dangerous kind of virus. This is a special virus जिसमें 4 दिन ताव नहीं आता है, 5वें दिन सीधा हॉस्पिटल में जाना पड़ता है. टेक केयर. ठीक है. चौथे दिन शाम को फूड फ्रॉम के कोरोना. यस. बुखार है? नहीं. अच्छा, ये वो वाला है, डेल्टा वेरिएंट है. ये नाम भी उन्होंने बना दिया. तो उसमें क्या होता है, 8वें दिन सीधा वो अपने फोन में किया होगा, मैं तो समझा नहीं. ठीक है. 8वें दिन फिर फोन किया, धवल कोरोना. यस. बुखार? नो. एक्चुअली मुझे एसिम्प्टोमेटिक था, पूरे परिवार को था, बट कोरोना था, बट कोई बुखार नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई यूज्ड टू टेक क्लासेस आल्सो. ऑनलाइन हम लोग पढ़ाते थे ना, तो मैं तो क्लास भी लेता था. बच्चे भी बाद में पता चला कि सर को कोरोना हुआ था. 8वें दिन धवल कोरोना. यस. बुखार? नो. अच्छा, तुम तो गए क्या? बोले इसमें पता नहीं चलता, एक दिन रात में ही 2020 में हुआ था, 25 आ गई. किसी की खबर पूछने जाओ ना हॉस्पिटल में, मेरे पास बहुत सारे ईमेल है. फिर जब मुझे ये हुआ ना, तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटी सी अपनी समाज सेवा शुरू करी है. समाज सेवा नहीं बोल सकते, किसी को कोरोना हो ना तो मैं फोन कर रहा, संकेत कोरोना? हाँ. ताव છે? તો સાહેબ થોડો તાવ છે, ઉધરસ છે. अच्छा अच्छा, કઈ થવા નહીં, મને થાય તો હમણાં જ એકદમ સરસ થઈ ગયું. હળદરનું પાણી પીજે અને બાકી હે કપિલ શર્માના શો જોવાનું ચાલુ કરી દે. I have evidences, मैम, I have evidences. 2 लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करके लिखा है कि डॉक्टर की दवाई से तुम्हारे फोन ने ज्यादा काम किया. पॉजिटिव. अब जितना प्रज्ञाबेन ने मुझे क्या बोला कि कैंसर हुआ तो कैसे बच पाई, तो बोले धवल भाई पॉजिटिव एटीट्यूड, बस अच्छा ही होने वाला है, आने वाला समय अच्छा ही है. बीटेक के बाद, बीजीसी के बाद अमेज़न में जाना ही है मुझे, गूगल में मैं जाने ही वाला हूं. पर आप 50-50 रहोगे ना तो कुछ नहीं. Stay away from negative influences. I am allergic to negative people. Next, try to find something positive in everyone, every professor, every individual, every relative, every friend. Find out positive. आज घर जाके ही एक्सरसाइज करो. पापा का पॉजिटिव क्या है, मम्मा का क्या है, दादा का क्या है, बाजू वाले अंकल का क्या है, यहां तक ही रिस्ट्रिक्ट करना. आगे, become a problem solver. Next, stay physically healthy. मैं ऐसे एक बार राजकोट में लेक्चर दे रहा था, एक छगन खड़ा हो गया, सर
हमको बोलते हो फिजिकली हेल्दी, आप कुछ करते हो? I go for a walk and I make sure that until I finish my target, I don't go for sleep. This is my data for June. Almost every day I have met my target. अब बोले सर एक आध तो हमें दिखाने के लिए लाए हो. This is May. This is April. Not to impress you. मैं ये जो कर रहा हूँ मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरी बॉडी अच्छी होगी. मैडम, there is a wonderful book. You please read. Organization comes third. मनीष भाई बोले सर क्या पढ़ा रहे हो? सर बोलेंगे मेरे डिपार्टमेंट मेरे सामने क्या पढ़ा रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन कम्स थर्ड, VGC कम्स थर्ड. अभी बताया ना मैडम. तो पहला क्या? पहले मैं खुद, दूसरा क्या? मेरी फैमिली, और तीसरा क्या? ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें फायदा लीडर कौन है, कैसे मैं आपको बताऊं? मानो मैडम, आई डोंट नो आपके घर में परिवार में कौन है, आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है. आज सुबह जब आप निकली VGC के लिए, उसने बोला कि मम्मी आज है ना सिर दर्द बहुत है, थोड़ा चक्कर आ रहे. आप यहां से अच्छा लेक्चर ले पाओगे? बीच में थोड़ी थोड़ी देर इन्हें क्यों हंसे, इन्हें बराबर तो हंसे कि नहीं? फैमिली, आपका एक नाखून थोड़ा ज्यादा कट गया है, थोड़ा और एनालॉग सर्किट पढ़ाने गए हैं, DSP पढ़ाने गए हैं, थोड़ा ज्यादा कट गया है, और कहीं पर चौक गिर गया, अच्छा लगेगा? मैं एक ही ऐसा डायरेक्टर हूं, जब वेकेशन में मेरे फैकल्टी गए ना, मैंने बोला कि તમારા પરિવાર સાથે, તમારા ફેમિલી સાથે મજા કરજો, બચ્ચા જોડે મજા કરજો, બચ્ચાને ટાઈમ આપજો, સરસ ચોપડી વાંચજો, મસ્ત મજાની સિતારે જમીન પર જોઈ આવજો. क्योंकि मैं फिट हूं, मेरा परिवार फिट है, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ही होने वाला है. स्टे हेल्दी. आपको जो अच्छा लगे, स्विमिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज, जो अच्छा लगे. आप बोलोगे सर अभी तो हमारी तो एज क्या है, 17 ओनली, दैट्स इट. तो भी करना चाहिए. हैबिट बनेगी तभी कर पाओगे. और ये बहुत सिंपल है. शुरू में मैंने बहुत डिफिकल्ट लगेगा, खास करके लेडीज को. તમને ખબર અમારે અહીંયા લેક્ચર લેવાના, પછી ઘરે જવાનું, પછી શાક લેવા જવાનું, પછી સમારવાનું હોય, ચોળી સમારતા તો કેટલી વાર લાગે, તમને ક્યાં ખબર છે? Correct? These are all excuses. Mrs. Pujara, we are a joint family. I have my parents. Earlier we had our grandparents also. We live with our parents. फिर भी Mrs. Pujara always goes for a walk. 10,000 मेरी और उनकी कंपटीशन इस पर रहती है. Because until and unless she is not well, she is not healthy, she cannot serve the family. They are a joint family. आगे 4 मिनट बाकी. आगे hang around positive people, make positive friends, positive relatives. Next, appreciate others as well as yourself. हम कभी कभी है ना इतने नेगेटिव बन जाते हैं ना, अपने आप के ऊपर में तरस आने लगती है, अपने आप को अच्छा नहीं लगता है. कई लोग तो मिरर में देखना बंद कर देते हैं. डिप्रेशन का पहला फेज है ये. भाई भगवान ने आपको बनाया है चैतन्य, जो भी है आप वैल्यू करिए. कभी अच्छा कहिए तो ऐसे, मैं तो बोले ऐसे आज जाके बोलने वाला हूँ. संजय सर बोले कि नहीं बोले, वेल डन, वंडरफुल लेक्चर. अपने आप को अप्रिशिएट करो. नेक्स्ट, स्टॉप नेगेटिव अजम्पशंस. मैं ड्राइंग में फेल हो जाऊंगा ना तो एक एटिकेटी लगेगी ना, तो गूगल में नहीं बैठने देंगे तो जॉब नहीं मिलेगी तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तो मेरी शादी नहीं होगी तो पूरी लाइफ में अकेला रह जाऊंगा. और अकेले लाइफ में क्या मजा है, तो मैं सुसाइड कर लूंगा. अभी तो एडमिशन लिया है. ऐसा होता है कि नेगेटिव थॉट का बहुत मजा था. देखो रोज सुबह जब आप उठते हो, रोज सुबह मैडम जैसे ही आंखें खुली ना, 2 बुल ने लड़ाई शुरू कर दी है. 2 बुल ने लड़ाई शुरू कर दी है. एक पॉजिटिव बुल है, एक नेगेटिव बुल है. आपने जिसको ज्यादा खाना दिया वो ताकतवर होकर लड़ेगा.
आप ज्यादा नेगेटिव सोच, इसलिए हमारे धर्म में बहुत अच्छा है। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मुले तु सरस्वती कर मध्य तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। कितनी साइंटिफिक बात है, कितनी साइंटिफिक बात है। आप जिसे ईश्वर को मानते हो, सीधा ये तो उठते ही व्हाट्सएप, मैं भी करता हूं ऐसे। एक एक आप जिस इष्ट को मानते हो, पॉजिटिव थोड़ा, फिर शुरू करो। पहला मैसेज मैं हमेशा मेक श्योर करता हूं, पहला ईमेल पॉजिटिव हो जाएगा। सबको गुड मॉर्निंग बोलना है, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। फर्क धीरे धीरे, जब घर से निकलो ना, मम्मी बाबा, ए मम्मी जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, ए डैडी, हक करो डैडी को, मम्मी को, करते हो कि नहीं? ये शर्म आती है? हाँ, पैर छुओ, हक करो, ऐसे ही। हाँ मम्मी 1000 જોઈએ यार, sorry, I apologize, please forgive me, I was wrong. It is not wrong to confess. I'm a director, I have 5 deans and 6 HODs every Tuesday without fail we meet, every Tuesday 10 o'clock. Sometimes they convince me, sometimes I convince them. I gave them a slogan, let us agree to disagree. Let us agree to disagree. We all are intellectuals. We have a right to disagree. If you disagree with me, does not mean that you are my enemy. मतभेद होय, मनभेद ना होय। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा। संजय सर ने कहीं से पीएचडी किया है, मैडम ने कहीं से पीएचडी किया है, मैंने कहीं से पीएचडी किया है, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल काफी ऊपर है। तो डिफरेंस, जितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके डिपार्टमेंट में है, डेकोरम मेंटेन करते हुए, तो दैट इज द बेस्ट डिपार्टमेंट। मैंने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से किया है। जितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डेकोरम मेंटेन करते हुए, उतनी डिपार्टमेंट के लिए अच्छी बात। See failure as an event. Next, कन्वर्ट फेलियर्स इनटू अपॉर्चुनिटी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आफत में अवसर में पलटिए। नेक्स्ट, डोंट टेक इट पर्सनली एवरी टाइम। नेक्स्ट, कीप स्माइलिंग, डू नॉट कंप्लेन। हंसते हुए लोग अच्छे लगते हैं। स्टॉप जेलसी एंड इगोइज्म। ईगो जैसे 6 सेकंड में काम करता है, ऐसे ईगो 6 सेकंड में आपका काम खराब कर सकता है। Read and listen motivational book, attend Dhaval Pujara's lecture. Next, count your blessings daily. Next, keep faith in God. जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है, बस ये मान के चलो ना, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। That's it. Okay, live. Next. These are all my lectures. Thank you so much. Exactly, you can see this is 2:50 in your watch. Once again, thank you so much to everyone, all good volunteers. Give a big round of applause to your volunteers and your professor. Thank you so much. God bless you. आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक बैलेंस बन जाए। Thank you so much, sir, for such an inspiring and thoughtful speech. Now